যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 120 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 5.120 অনওয়ার্ডস। 120 নম্বর শ্লোক। দুই ঠাই অপরাধে পাইবি দুর্গতি, দুই ঠাই অপরাধে পাইব দুর্গতি, পাইবি দুর্গতি, পাইবি দুর্গতি। অত তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, অত তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার এই রীতি, अत्व तत्व तत्व वर्णे तार ए रीति। तो स्वरूप दामोदर उस ब्राह्मण को बोल रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ताके तिरस्कार করে বললেন, তুই জগন্নাথ দেব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উভয়ের চরণে অপরাধ করেছিস, তার ফলে তোর চরম দুর্গতি হবে। অততত্ত্বজ্ঞ, I don't know what is this. Let me see English. অতত্ত্বজ্ঞ প্রভু, অতত্ত্বজ্ঞ হয়ে কেউ যদি তত্ত্ব বর্ণনা করে তাহলে তার এই ফল হয়। जिनको तत्व मालूम नहीं है वो अगर तत्व को वर्णन करना चाह रहे तो उसका ऐसे होता है। তাৎপর্য শিল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর বিচারে সেই বঙ্গদেশীয় কবি অপরাধ করেছিলেন, কেননা তত্ত্বজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্গদেশীয় কবিটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী জগন্নাথ দেবের উভয়ের চরণেই অপরাধ করেছিলেন, কেননা তিনি শ্রী জগন্নাথ দেবের দেহ ও দেহিতে ভেদ দর্শন করেছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি জগন্নাথ থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করেছিলেন। পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই অথবা যে তার নিজের দেহকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে তাকে বলা হয় অতত্ত্বজ্ঞ। ইন্দ্রতর্পণ পরায়ণ অহংগ্রহ উপাসক অথবা ফলভোগী কর্মী যদি পরম তত্ত্ব বর্ণনা করার চেষ্টা করে তাহলে তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী পাদপদ্মে অপরাধ হয় তাদের। ওকে, আরো এক করিয়াছ পরম প্রমাদ। गायत्री माता जी बोलिए। और एक करियाछ परम परमाद, দেহ দেহি ভেদ ঈশ্বরে কইলে অপরাধ, देह देहि भेदे ईश्वरे कैले अपराध। তুমি সম্পূর্ণরূপে মহাচ্ছন্ন, কেননা তুমি ভগবানের দেহকে এক দেহি ভিন্ন বলে বর্ণনা করেছো, সেটি একটি মহা অপরাধ। भगवान का तो पूरा चिन्मय ही है, भगवान का कोई तो अंतर नहीं है शरीर और आत्मा में। यस, इंद्राणी माता जी पढ़ते चान। यस, अशोक प्रभु। পরমেশ্বর ভগবানের দেহকে এবং দেহিকে ভিন্ন বলে মনে করলে অপরাধ হয়। জড় জগতে জীব জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই বদ্ধ জীবের দেহ এবং দেহি ভিন্ন। ভগবান এবং বদ্ধ জীবের ভেদ এই যে ভগবান কর্মফল দাতা, সর্বকারণের পরম কারণ এবং জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর, তাই তিনি পরম প্রভু। কিন্তু জীব বদ্ধ অবস্থায় কর্মফল ভোক্তা এবং কর্মফলের অধীন। মুক্ত অবস্থাতেও সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরত। এইভাবে সাধারণ জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পার্থক্য রয়েছে। কর্মী এবং জ্ঞানীরা এই পার্থক্য স্বীকার করে যে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে অপরাধ করে। सो जीव हमेशा देखा जाए तो भगवान से ही कनेक्टेड है। जब जड़ जगत में है तो कर्मफल भगवान से आता है, सब भगवान के दिया कर्मफल को भोग करता है, और जब मुक्त अवस्था में तो भगवान की सेवा में है। सो ऑलवेज एक्चुअली ही इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्म भूत की मुक्त अवस्था में भी वह भगवान की सेवा करता है। हाँ, यानी प्योर डिवोशनल सर्विस। जब एकदम ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म स्तर में एकदम शरीर और आत्मा का फर्क जब उनको समझ में आता है, जब वो भगवान कृष्ण तत्व उनको मालूम है, कृष्ण कॉन्शियस प्योर डिवोटी स्टेट,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मना सोचिति न कांक्षति, ठीक है, वो स्टेट में। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने कर्मी लोग जो है वो कैसे अटैच्ड है भगवान से? बिकॉज कर्मफल भोग करता है, वो कौन देता है? भगवान देता है। लिखा है ना, भगवान कर्मफल दाता है। बट दैट इज इनडायरेक्टली, नो प्रभु, नॉट डायरेक्टली, वो तो माया देती है ना। हाँ, तो देते तो भगवान ही है। तो उस तरह से हमेशा जीव भगवान से संपर्कित है। ओके, यस। সাধারণ মানুষ জড়া প্রকৃতির অধীন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী জগন্নাথ দেব সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর এবং তাই কোনো অবস্থাতেই জড়া প্রকৃতির অধীন নন। পরমেশ্বর ভগবান অপরিমেয় বা অখণ্ড চেতন, কিন্তু জীব ভগবানের অনুসদৃশ অংশ বিশেষ। মমেবাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতন। এমন নয় যে বদ্ধ অবস্থায় তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির আবরণ মুক্ত হলে তারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই ধারণা অপরাধমূলক। ठीक है, तो ये एकत्व का जो धर्म है ये भी गलत है। कविता माता जी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? आगे मत प्रभु जी। মূর্খ মায়াবাদীরা মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে আসেন তখন তিনি একটি জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু বৈষ্ণবেরা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী জগন্নাথ দেব বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ এবং দেহি অভিন্ন। এমনকি তার নিত্য বিগ্রহ এই জড় জগতে প্রকাশিত হলেও তা কখনোই প্রাপঞ্চিক ধর্ম বিশিষ্ট মায়িক বা প্রাকৃত নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ তার বাল্য লীলাতেও সমগ্র ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। তো ভগবান যখন এই বিগ্রহ রূপে আসে তা কখনোই प्रापंचिक धर्म विशिष्ट माइक व प्राकृत नয়। इसका इंग्लिश क्या है ज्योति माता जी? Even in the material world, his lordship retains his spiritual identity. Therefore, the Lord Krishna exhibited all opulences even in his childhood body. So, there is no distinction हमको जो समझ between में the आ रहा body है, and या প্রকাশিত হলেও ইভেন ডিটি ফর্মে আনে से भी ये কখনোই প্রাপঞ্চিক ধর্ম বিশিষ্ট মাইক বা प्राकृत নয়। মানে इट इज नॉट रेफरिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भगवान आया है। I mean, he has come for, he has appeared for all प्रापंचिक धर्म विशिष्ट। That's what I understand. Let me find the yes, हिंदी में क्या लिखा है शशि माता जी? यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी भगवान अपना आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखते। এমনকি তার নিত্য বিগ্রহ এই জড় জগতে প্রকাশিত হলেও তা কখনোই প্রাপঞ্চিক ধর্ম বিশিষ্ট মাইক বা প্রাকৃত নয়। ये सेंटेंस मिस हो रहा है शायद। नहीं है, ये थोड़ा मिस हो रहा है प्रभु जी, ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। ओके, आगे प्रभु। তাই শ্রীকৃষ্ণ তার বাল্যলীলাতেও সমগ্র ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহ দেহিতে ভেদ নেই, তা তার শিশু শরীর হোক বা যুবক শরীর হোক, তিনি সর্বদাই তার দেহ থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও একজন সাধারণ মানুষের মতো বলে প্রতিভাত হন, তিনি কখনোই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তিনি স্বরাজ বা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তিনি এই জড়জগতে প্রকাশিত হতে পারেন, কিন্তু মায়াবাদীদের অপরাধমূলক ধারণা অনুসারে তিনি কখনো জড় শরীর ধারণ করেন না। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখযোগ্য। ईशादीशनमीशास्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मास्तेर यथा बुद्धेस्तदाश्रया। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নিত্য চিন্ময়। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহিতে ভেদ দর্শন করে তাহলে সেটি মহা অপরাধের কার্য। Yes, Mataji. Prabhuji, just see the before the shloka, just see the last two lines. Yes. He can appear in the material world, but contrary to the offensive conclusion of the Mayavadis,
school, he has no material body. दैट मीन्स जब भगवान अवतरण होता है उनका शरीर माने जड़ जगत में आने से ऐसा नहीं कि जड़ शरीर मिल जाता है भगवान को, उनका No, शरीर but मायावादीज लोग बोल रहे हैं ना कि उनके मटेरियल बॉडी नहीं है यहाँ पे. मटेरियल बॉडी है बोल रहा है, इसलिए कॉन्ट्ररी टू द मटेरियल बॉडी ही डज नॉट हैव मटेरियल बॉडी, मैंने कॉन्ट्ररी टू द मायावादी फिलॉसफी. ठीक ही लिखा है, कॉमा दिया हुआ उसमें. मायावादी बोल रहे हैं ना he has no material body. जड़ शरीर है, अवजानंदी मामूढ़ा मानुसिंतनु आश्रितम, ये मायावाद फिलॉसफी है. हाँ, ठीक तो है. यहाँ पे क्यों बोल रहे he has no material body मायावादी? Contrary to the offensive conclusion of the Mayavadi school, comma, he has no material body. Contrary to that. So he अच्छा, has no ओके material body. Clear है ना? ओके. हाँ प्रभु, थैंक यू प्रभु. 122 नंबर. मायावाद में तो यही ना होता है प्रभु कि वो जन्म लेते हैं मनुष्य की तरह, मरते भी हैं मनुष्य की तरह, इसलिए वो मेटीरियल बॉडी है. हाँ, जैसे इस ब्राह्मण ने भी लिखा है श्लोक में, नांदी श्लोक में, ईश्वरेर नाही को भू देहो देही भेद, ईश्वरेर नाही कभू देहा देही भेद, स्वरूप देहो चिदानंद नाही को विभेद. स्वरूप देहा चिदानंद नाही কিবা ভেদ। কোনো অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহিতে ভেদ নেই। তার স্বরূপ এবং তার দেহ চিদানন্দময়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব, অর্থাৎ তার দেহ এবং দেহিতে কোনো ভেদ নেই, কেননা তার সত্তা পূর্ণ চিন্ময়। শ্রীমদ্ ভাগবতের বদন্তি তত্ত্ববিদস্তম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে পরম তত্ত্ব সর্বদা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের তিন রূপে পরিজ্ঞাত হন। এইভাবে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দ্বৈত বস্তু বুদ্ধি নিরস্ত হয়েছে। इसका इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है? Unlike the objects of the material body, however, the absolute truth is always one and always the same. এইভাবে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দ্বৈত वस्तु बुद्धि निरस्त হয়েছে। सो भगवान अद्वितीय है लेकिन उनमें द्वैत वस्तु बुद्धि निरस्त হয়েছে, बिकॉज ही हैज, मैंने देह और देही अलग है, ये द्वैतवाद हो गया ना। तो देह और देही नहीं, भगवान में देह और देही अलग नहीं है, फिर तब अपर ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं होगा। ये निरस्त হয়েছে प्रभु बोलছে ना। यस, ऊपर वाला लाइन पढ़िए, उसके आगे तीन प्रकार में ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो भगवान अद्वितीय है लेकिन भगवान का तीन स्तर है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। ठीक है, क्लियर है अशोक प्रभु? देह देही नहीं, वो वाला फर्क नहीं, तीन लेवल में रियलाइजेशन है कृष्ण का। क्लियर है सबको? एक बार हिंदी पढ़ लीजिए शशि माता जी। प्रभु जी, मतलब भगवान डिवाइड नहीं हुए हैं, मतलब उनका देह डिवाइड नहीं हुआ है, उनका तीन। यहाँ द्वैत वस्तु, यहाँ जो डुअलिटी बोला गया है, इट इज डुअलिटी ऑफ रियलाइजेशन। भगवान को तीन स्तर में उपलब्ध हो सकता है, उसको रेफर कर रहे हैं शशि माता जी। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी? नहीं, वो लाइन तात्पर्य में जो वो लाइन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़िए। अतएव उनके रूप, नाम, गुण तथा लीलाएं भौतिक जगत की लीलाओं आदि से सर्वथा भिन्न है। यह भली भांति समझ लेना होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जब कोई व्यक्ति उनके शरीर तथा आत्मा के में अंतर की कल्पना करता है तो वह तुरंत भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। चूंकि भौतिक जगत में मनुष्य ऐसे अंतर करता है, इसलिए वह बद्ध जीव कहलाता है। ओके, सो वही लाइन का अर्थ जो है ना, हम वो बोले प्रभु कि यही भावे अद्वितीय परमेश्वरे, माने इस तरह अद्वितीय परमेश्वर का द्वैत वस्तु बुद्धि, द्वितीय माने दो देह और देही अलग अलग है, जो बुद्धि है वो निरस्त हो जाता है, माने तीन रूप में आते हैं, वहीं पर क्लियर हो गया। देह और देही तो अलग नहीं है भगवान में, नहीं है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो जो समझने वाले हैं उनकी बुद्धि यहाँ पर निरस्त हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड, यस।
তিনি অদ্বয় জ্ঞান, সুতরাং তার নাম রূপ গুণ ও লীলা জড় জগতের বস্তুর মতো ভিন্ন ভিন্ন নয়। তা ওই ঐকান্তিক অভিন্ন বলে জানতে হবে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহিতে ভেদ দর্শন করে তৎক্ষণাৎ সে জড় প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জড় জগতে জীব এই ভেদ দর্শন করে বলে তাকে বদ্ধ জীব বলা হয়। बद्ध जीव माने कंडीशन सोल जो जड़ जगत में बद्ध है, कंडीशन है, 3 गुणों के प्रभावित में है। ठीक है प्रभु? जैसे हम लोग बद्ध जीव का ऑपोजिट क्या है दिलीप प्रभु? मुक्त जीव, लिबरेटेड सोल। बद्ध जीव कंडीशन सोल। 123 नंबर श्लोक। देह देही विभागोयम। सुनना पड़ेगा। देह देही, अच्छा मेरा नहीं क्या? तो बोलिए बोलिए बोलिए। देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। नश्वरे विद्यते कचित। কোনো অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহিতে ভেদ নেই। ये लघु भागवतामृत से लिया गया है। कुर्म पुराण থেকে उद्धृत ये श्लोक लघु भागवतामृते उल्लेख करा है। ओके, ये एक्चुअली है तो कुर्म पुराण से, बट लघु भागवतामृत कौन लिखा है? लघु भागवतामृत ग्रंथ रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। तो उनका एक्चुअली ग्रंथ ये कंपाइलेशन है। उन्होंने जब लिखा है ये सब ग्रंथ, ये सब एक्चुअली कंपाइलेशन है, अलग अलग शास्त्र से सब श्लोक लेकर। तो वहां ये श्लोक बताया गया है that there is no distinction between the body and the soul of the supreme personality of Godhead at any time। ठीक है? सो स्वरूप दामोदर जो कोट कर रहे हैं, कौन से बुक से कोट कर रहे हैं? लघु भागवतामृत या कुर्म पुराण से? ऑब्वियसली कुर्म पुराण से कर रहे हैं, क्योंकि अभी बुक पब्लिश हो गया क्या? रूपा गोस्वामी का बुक पब्लिश कर दिया क्या ऑलरेडी? नहीं प्रभु जी, नहीं। श्लोक तो स्वरूप दामोदर और भी कोट श्लोक कर रहे हैं, सॉरी श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। नाता परम परमयद् भवता स्वरूपम। नातं परम परमं यद्भवत् स्वरूपम् आनन्दमात्रम विकल्पम अविद्यवाच। आनन्दमात्रं विकल्प अमविद्यवर्च। पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वम्यातम् आत्मम्। पश्यामि विश्वसृजमेक विश्व आत्मनम्। भूतेन्द्रियात्मकमदस्तु त उपाश्रितोऽस्मि। भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपोषितोऽस्मि। तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय। तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय। ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानाम्। ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानाम्। तस्मै नमो भगवते अनुविद्यमानतुभ्यम्। तस्मै नमो भगवते अनुविद्येम तुभ्यम्। यो अनद्रितो नरक भागभीर असत् प्रसंगे। यो अनोदित नरक विगवर सत प्रसंगे। यस श्रीवास प्रभु, अनुवाद पूर्ण। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, इफ ऑल दिस, ये सब बुक्स जो कंपाइलेशन आप बोल रहे हैं, लघु भागवतामृत, कुर्म पुराण, तो प्रभु एवरीथिंग नहीं, कुर्म पुराण नहीं होते हैं कंपाइलेशन, लघु भागवतामृत। तो प्रभु जब लिखा है सब श्लोक, तो कंपाइल क्यों करते प्रभु जी सब जगह से ले लेके श्लोक? बिकॉज इट इज रेलेवेंट। कुछ रेलेवेंट चीज, जैसे उपदेशामृतम में फॉर एग्जाम्पल एक ग्रंथ को लेकर तो समझ में आ जाएगा। उपदेशामृतम में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कितना श्लोक है कविता माता जी? प्रभु जी 18 है, 11 है। सो ये 11 श्लोक्स रेलेवेंट है या नहीं बताइए, सीक्वेंस में है या नहीं?
कैसे एक व्यक्ति, पहले श्लोक क्या है, पहला श्लोक क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, फिर वेग के बारे में बताया गया है। फिर भक्ति का प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है, उत्साह निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, फिर नेगेटिव भी क्या है वो भी बताया गया है। 6 भक्ति का प्रीति लक्षण वो भी बताया गया है। ये सब एक न्यूफाइड डिवोटीज के लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सो ये 11 जो ऐसे नहीं कोई रैंडम श्लोक लेकर ऐसे कंपाइल कर दिया, कुछ भी नहीं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पार्ट ओनली वन पार्ट ना, पार्ट प्रभु जी, पार्ट डिस्क्राइब, पार्ट समझा नहीं प्रभु। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि उद्देश्यमित में वो जी हाँ, ये एक अलग से बुक है ना। हाँ, अलग सा बुक है। सो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि रूपा गोस्वामी ने कोई रैंडम श्लोक यहाँ से वहां से, इतना पुराना है कहीं से भी एक लेकर कंपाइल, ऐसा नहीं है। जो रेलेवेंट श्लोक है वो कंपाइल किया। ठीक है ज्योति माता जी? हाँ प्रभु, आप समझ में आए प्रभु। मतलब कि बहुत सारे श्लोक जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कोई उस पुराण में, कोई उस बुक में है, कोई उसमें है, तो वो सबको लेके एक जगह कंपाइल करके बताया कि रिलेटेड श्लोक्स है, ताकि इट्स अ प्रूफ कि हर जगह एक ही बात कही जा रही है। मतलब एक ही नहीं, उसमें सीक्वेंस भी है कुछ। उपदेशामृत में अगर देखा जाए, देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज समथिंग कनेक्शन बिटवीन ईच ऑफ द श्लोक्स। हाँ, कनेक्शन भी है एंड देयर इज अ प्रूफ कि ये इसमें, ये पुराण में ये बात कही गई है। मतलब जैसे प्रभुपाद जी कोट करते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये देखिए, ये इस बुक में ये भी लिखा है, यहाँ पे भी और भी लिखा है यही सिमिलर चीज। तो मतलब ये प्रूफिंग कि सब शास्त्र एक साथ मिलने चाहिए। मतलब शास्त्र का सार जो इम्पोर्टेंट चीज है अलग अलग पुराणों से वो लेकर एक कंपाइल किया है। इससे कोई नौसक्या भक्त को पुराण पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, पुराण उपनिषद ये सब पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं। ये सब ग्रंथ उपनिषद, सॉरी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन इज आल्सो लाइक दैट, कंपाइलेशन है। ओके, लघु भागवतम। यहाँ पर प्रभु ये भी हो गया कि मैंने जो लिखा या कहा है वो मेरे मन की बात नहीं है, ये ग्रंथों ने भी प्रूव किया है, यह लिखा गया है। गुड। अनुवाद शिवाश प्रभु। हे भगवान, আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের থেকে শ্রেয় কোন রূপ আমি দেখি না। চিদাকাশে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির কোনো পরিবর্তন নেই এবং অবক্ষয়ও নেই। আমি আপনার সেই পাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এবং জড় ইন্দ্রিয়ের গর্বে গর্বিত। অথচ আপনি সারা জগতের পরম কারণ, तथापि अपनी जड़ेर द्वारा प्रभावित है। हाँ, तो लग रहा है कौन बोल रहा है किसको? एक तो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शायद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना। तीसरा स्कंद है, देखिए श्लोक कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद। हम लोग अभी तीसरा स्कंद ही कर रहे हैं दोपहर को। तीसरा स्कंद का 9वां अध्याय, शायद ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। आगे परमेश्वर भगवान ब्रह्मारूक्ति बोला ही হচ্ছে। কোথায় লেখা আছে ব্রহ্মারুক্তি? আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বর্তমান রূপ অথবা যে কোনো অপ্রাকৃত রূপ সমগ্র জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার নিত্য স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, সেই রূপ আপনার ভক্তরা অন্তর্ধান করে। আমি তাই আপনার সেই পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী তারা জড় বিষয়ে মগ্ন হয়ে আপনার সবিশেষ রূপের অবজ্ঞা করে। সেই রূপ আপনারা হয়ে গেছে, সেই রূপ আপনার ভক্তরা অন্তর্ধান করে। I mean, is there a misprint आप लोग को लग रहा है अशोक प्रभु? या ध्यान करे तो ठीक है, अंतर्ध्यान करे, अंतरे ध्यान करे ना कि अंतर्ध्यान माने तो अंतर्ध्यान माने की अंतर्ध्यान नहीं लिखा प्रभु, चिंतन लिखा है, चिंतन नहीं, अंतर्ध्यान लिखा हुआ। हाँ, बंगाली में तो अंतर्ध्यान लिखा है। इंद्राणी माता जी अंतर्ध्यान माने की प्रभु जी? अंतर्ध्यान माने চলে যাওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া। অন্তর্ধ্যান এটা অন্তরের ধ্যানের কথা বলছে। ধৈর্যকলাকার নয় তো আছে, অন্তরে ধ্যান হওয়া উচিত। मेडिटेशन
हाँ, अंतर्ध्यान में तो मेडिटेशन, और अंतर्ध्यान माने अप्रकट हो ना, अंतर्ध्यान हो गया। সেটা সেটা প্রভুজি অন্তর্ধান। प्रभुजी इंग्लिश में भी मेडिटेट लिखा है। यस, तो अंतर्ध्वज फलकार ना तो अंतर्धान ही हलो। ओके, 126 नंबर श्लोक सबको क्लियर है ना? क्या बोलना चाह रहा है दामोदर? प्रभुजी हाँ, लास्ट लाइन जो है अनुवाद का, हाँ, दोज हु आर डेस्टिन्ड, मतलब डेस्टिनी मतलब उनका डेस्टिनी कंफर्म कर दिया है भगवान ने। जारा नरकगामी लिखा है, जारा नरकगामी, नरकगामी मींस दोज हु आर डेस्टिन्ड टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स। हाँ, डेस्टिन मतलब कि उनका डेस्टिनेशन हो गया ना, कि वो हेल प्लैनेट्स में जाएंगे। हाँ, तो वो सिन करें या नहीं करें, हाउ डज इट मैटर? नहीं, those who are destined to your hellish planet means जो पापी लोग हैं। अच्छा, जो पतित है, जो फॉलन है, ये जो पापी लोग हैं। Okay, it's a way of saying. It's a way of saying. by default, जो नरकगामी व्यक्ति है, इसका मतलब नहीं कि अभी ये बोला जा रहा है जो पापी व्यक्ति है, ठीक है? जो मायावाद लोग हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं मायावाद के बारे में कि those who are destined to go to the hellish planets, बोल सकते हैं, because anyways you know their philosophy is completely bogus. Yes प्रभु, thank you. 126 नंबर श्लोक, कहाँ पूर्णानंद ऐश्वर्य कृष्ण महेश्वर। पुन्नालाल प्रभु जी बोलिए। इतना कहाँ पूर्णानंदेश्वर कृष्ण महेश्वर। नंदी श्लोक का इतना स्वरूप दामोदर ने उनका पिटाई किया है, हमको नहीं लग रहा कभी पोएट्री लिखेगा वो बंगाल से जो ब्राह्मण है, कभी कुछ पोएट्री लिखेगा हमको नहीं लग रहा। कहाँ पूर्णानंद ईश्वर प्रभु जी, भगवान पे तो क्या वो किसी पोएट्री नहीं लिखेगा, कुछ पोएट्री नहीं लिखेगा, इतना उसका पटक पटक के हुआ अभी भी बाकी है। देखिए, कहाँ पूर्णानंद ईश्वर जो कृष्ण महेश्वर, कहाँ पूर्णानंदेश्वर कृष्ण महेश्वर। कहाँ क्षुद्र जीव दुखी मायारो किंकर, कहाँ क्षुद्र जीव दुखी मायार किंकर। तो अभी स्वरूप कहाँ भगवान और कहाँ ये जीव, कहाँ सॉरी कोথায় पुण्य ঐশ্বর্যময় मायार ईश्वर श्री कृष्ण, और कोথায় क्लेश जर्जरित मायार किंकर क्षुद्र जीव। आप कैसे दोनों को एक बल रहे, कैसे दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है, तात्पर्य जीव नित्य बद्ध मायार अधीश्वर। यस मुन्ना प्रभु म्यूट। জীব নিত্য বদ্ধ মায়ার অধীশ্বর, তাই কিভাবে তারা সমপর্যায়ে ভুক্ত হতে পারে? তাদের কোনো তুলনা সম্ভব না। পরমেশ্বর ভগবান নিত্য আনন্দময়, কিন্তু বদ্ধ জীব মায়ার সান্নিধ্যের ফলে নিত্য নিরানন্দময়। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন আর জড় প্রকৃতির বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাধারণ জীবের কোনো তুলনাই সম্ভব নয়। अगला श्लोक, लादिनी संविदाश्लिष्ट आनंद ईश्वर सच्चिदानंद ईश्वर पविद्या संवृतो जीव स्वविद्या संवृतो जीव संक्लेश निकराकर संक्लेश निकराकर। तो अभी श्री विष्णु स्वामी এই উক্তিটি শ্রীল শ্রীধর স্বামী भावार्थ दीपिका থেকে उद्धृत হয়েছে। विष्णु स्वामी कौन सा संप्रदाय का आचार्य है रेखा माता जी? कुमार संप्रदाय का ना विष्णु स्वामी? शंकर संप्रदाय, विष्णु रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय कल ही तो हम लोग पढ़े प्रभु जी। रुद्र संप्रदाय, हाँ प्रभु जी कल आप पढ़ाए थे। रुद्र संप्रदाय, करेक्ट। ओके, तो श्री विष्णु स्वामी रे उक्तिटी श्रील श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका, तो उन्होंने कोई भावार्थ दीपिका ग्रंथ लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ওকে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা সচিদানন্দময় এবং লাদিনী ও সংবিত শক্তির দ্বারা আশ্লিষ্ট।
কিন্তু জীব সর্বদাই স্বীয় অরপিত অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সে সর্বপ্রকার क्लेशेर आकर। ठीक है, किसी का कोई डाउट है इस श्लोक में? तो भगवान सच्चिदानंद में है, इसीलिए लादिनी शक्ति और संवित शक्ति से वो कवर्ड है। भगवान पूरा स्पिरिचुअल है। ये सब जरा शक्ति होता प्रभु जी, 3 शक्ति होता, 2 शक्ति बोला गया है। हाँ, संधिनी का बताया नहीं दिया है, लेकिन जरा जो जीव है वो अविद्या से पूरा कवर्ड है। और सुनी अभी बस अभी और कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी सर दामोदर फाइनली। सुनी सभासदेर चित्ते হইল চমৎকার। শুনি সভাসদের চিত্তে হইল চমৎকার। সত্য কহে গোসাই দুহার করিয়াছ তিরস্কার। সত্য কহে গোসাই দুনার করে करियाछ तिरस्कार। तो फाइनली सबको चमत्कार लगा। শ্রীল সমুদ্র দামোদর গোস্বামীর এই বিশ্লেষণ শুনে সভায় উপস্থিত সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন এবং তারা বলতে লাগলেন, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী যা বলছেন তা ঠিক। এই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণটি শ্রী জগন্নাথ দেবের এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বিকৃত করে অপরাধ করেছে। শুনিয়া করিব হইল লজ্জা ভয়ে বিস্ময়। শুনিয়া কবির হইল লজ্জা ভয় বিস্ময়। শুনিয়া কবির হইল লজ্জা ভয়ে বিস্ময়। শুনিয়া কবির হইল লজ্জা ভয় বিস্ময়। অংশ মধ্যে বক জইছে কিছু নাহি কয়। हंस मध्य बक जैसे किछु नहीं कर। हाँ, ये सब जो अभी उपस्थित है सब हंस जैसा है जब चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग है, और बीच में कौन आ गया? एक बक आ गया। ओके, এইভাবে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে সেই বঙ্গদেশীয় কবিটির লজ্জা ভয় ও বিস্ময় হলো এবং নিজেকে হংস সমাজের একটি বকের মতো বলে অনুভব করে মৌন অবলম্বন করে রইলেন। এখানেই রাখতে हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। এখানে রহিল সবে বলো হরি হরি। বদন হরিয়া সবে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল हरि बोल। जय दास कविराज गोस्वामी की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय भक्तवृंद की जय। जय।